Good morning to all of you. So in last class, we discussed about the ISA risk analysis and differences. This topic will be covered. And now today's topic is computer architecture classification. That is a 4 type of classification we discussed in last class. Flyn's classification, Fang's classifications, Handler's classification, and Sort's classification. So today we discuss about the Flyn's classification. Okay. Okay. So as I told you, this Flyn's classification is further divided in 4 type of computers like SIST, SIMD, MIST, and MIMD computer systems. Okay. So basically, what is Flyn's classification? We discussed that. Then we will start its classification. So Flyn's classification is basically introduced by Michael Flynn in 1966. Okay, Michael J. Flynn. And this it is based on the multiplicity of instruction stream and data stream. Okay. And it is also based on the number of instruction and data stream that are processed or are manipulated simultaneously. Okay. So माइकल फ्लिंस ने जो भी हमें क्लासिफिकेशन दिया है वो किस पर बेस्ड है? हमारा डेटा स्ट्रीम एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पर बेस्ड है. ठीक है. तो जो भी इसमें हमारे सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो हमारे एक मतलब डेटा एंड स्ट्रीम में हमारे एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है. तो इट्स गिव्स हाउ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा विल बी एग्जीक्यूटेड अपॉन अ सिंगल प्रोसेसर. ठीक है. So Flynn uses the stream concept.
So basically Flint uses the stream concept for describing a machine structure, and a stream basically simply means a sequence of items or a data or instruction. Okay, so Flint ने जो यूज किया है stream, वो किसका concept है, basically हम किसके लिए यूज करते हैं, which is basically used for describing a machine structure. ठीक है, and in machine structure we are using a data or an instruction. ठीक है, अब what is stream? We are using a data stream and instruction stream, but what is stream? So stream simply means a sequence of items. ठीक है, so what is the sequence of item? So we are using a data or an instruction, so we can say that sequence of data and instruction, that is a stream. Okay, now what is instruction stream and what is data stream? ठीक है, so instruction stream is what? It is the sequence of instructions as executed by the machine. ठीक है, or the sequence of instruction which is read from the memory and instruction stream. What is data stream? So data stream is a sequence of data including input, partial or temporary result, called by instruction stream. ठीक है, so इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होगा, हमारा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो मशीन के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे. डेटा स्ट्रीम में क्या होंगे, हमारे इनपुट, पार्शियल, टेम्पररी रिजल्ट, ये सारे के सारे उसमें जो स्टोर होंगे, दैट इज कॉल्ड योर डेटा स्ट्रीम. ठीक है, तो हम फ्लिंट क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम का यूज करेंगे. ठीक है, अब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट टर्म में, लाइक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को हम IS से रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा स्ट्रीम को हम DS से रिप्रेजेंट करेंगे. Okay, so this is a 4 type of taxonomy of this this Flint classification: single data and multiple data, single instruction and multiple instruction. Okay, this file is visible now, no? Yes, ma'am. Okay, so हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक क्लासिफिकेशन बनाएंगे जहाँ पर हमारे क्या होंगे, सिंगल डेटा एंड मल्टीपल डेटा होंगे, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे. ठीक है, तो हम 4 टाइप्स के होते हैं. सिंगल डेटा, SIST में सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, दैट इज योर सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा SIST. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा MIST. Single instruction and multiple data, that is SIMD, and multiple instruction, multiple data, that is MIMD. Okay, so ये 4 types के होते हैं. ठीक है, so basically this instruction, ठीक है, so instruction are decoded by the control unit, and then control unit send the instruction to the processing unit for execution. So here we are using 2 type of unit, control unit and processing unit. Control unit is represented by CU and processing unit is represented by PU. Okay, so जब भी हम आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे तो हम वहाँ पर शॉर्ट टर्म का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कंट्रोल यूनिट को मैं CU बताऊंगी, आपको प्रोसेसिंग यूनिट को PU. तो डायरेक्टली आपको समझ जाना है कि CU PU क्या है, IS अगर लिख रहे हैं तो क्या है, DS अगर लिख रहे हैं तो क्या है. ठीक है, सो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, तो डेटा स्ट्रीम फ्लोज बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेमोरी बाई डायरेक्शनली. जो भी हमारी डेटा स्ट्रीम्स होंगी वो प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में बाई डायरेक्शनली फ्लो करेंगे. ओके, सो ये हमारा क्या था, टैक्सोनॉमी था. नाउ फर्स्ट वन इज योर SIST. ठीक है, मींस सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा. ठीक है, one more thing we have to understand. Now this SIST, SIMD, MIST, MIMD, ये 4 टाइप के जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, that is a single and this is a multiple. So SIST जो हमारा कंप्यूटर है, हम उसको यूनी प्रोसेसर भी बोलते हैं. ठीक है, SIST जो हमारा कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, हम उसे यूनी प्रोसेसर भी बोलते हैं. MIST जो है, हम उसे वेक्टर प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं. ये हमारा वेक्टर प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग में यूज होता है. ठीक है, MIST हमारा यूज नहीं होता है, बट this is also we are studying, and this is also maybe pipeline computers. ठीक है, maybe, not sure. ठीक है,
MIMD मल्टी कंप्यूटर्स एंड मल्टी प्रोसेसर्स। अब इनको हम ये सब क्यों बोलते हैं तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, हमारा क्या है SIST, जिसे हम बोलेंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, SIST। अब सिंगल सिंगल हमारा बात हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल हमारी कंट्रोल यूनिट होगी, सिंगल प्रोसेसर यूनिट होगी, सिंगल हमारी मेमोरी होगी, इंस्ट्रक्शन डेटा होगा एंड प्रोसेसिंग डेटा स्ट्रीम होगा। ओके, so this is SIST is also called uniprocessor machine. Okay, now it execute a single instruction which operate on a single data stream. ठीक है, क्या करता है ये, एग्जीक्यूट करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन को जो हम ऑपरेट करते हैं सिंगल डेटा स्ट्रीम को। ठीक है, in SIST machine instructions are processed in a sequential manner, so it is called sequentially computer also. ठीक है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक सीक्वेंस में एक फ्लो होते हैं, sequentially execute होते हैं, sequentially operate होते हैं, that's why this is called sequential computer. Okay, so SIST is just the classical sequential von Neumann computers. ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं कि कौन से वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं और किसमें क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे SIST को हम यूनिप्रोसेसर बोल रहे हैं, सीक्वेंशियल कंप्यूटर बोल रहे हैं हम, क्लासिकल और सीक्वेंशियल वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस SIST यूनिप्रोसेसर आल्सो जनरली पाइपलाइन। ठीक है, नाउ ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हम यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक कंट्रोल यूनिट होगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से क्या होगा, हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेन मेमोरी होगा, और यू कैन सी दैट मेमोरी। ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा, हमारा इनपुट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा होगा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, दैट इज योर डेटा स्ट्रीम, एंड यहाँ से क्या होगा, हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ओके, सो ये टर्म सभी को पता है। IS हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, DS हमारा है डेटा स्ट्रीम, CO है कंट्रोल यूनिट, PO है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एंड MM क्या है, हमारा मेन मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म आपको याद रखना है बिकॉज सारे आर्किटेक्चर में मैं ये टर्म्स यूज करूंगी, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन होगा हमारा, ठीक है, SIST में देखिए हमने क्या बोला कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा इनपुट होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल यूनिट से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, उसे प्रोसेस करेगी एंड जो भी उसका डेटा है उसको कहाँ पर सेंड करेगी, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को फैच कराकर कहाँ पर सेंड करवाएंगे, कंट्रोल यूनिट में। तो ये जो प्रोसेस है पूरी एक सीक्वेंस में हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो एट फर्स्ट द इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी मेड अवेलेबल टू द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो कहाँ पर हमारा अवेलेबल होगा, कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन और सिंगल कंट्रोल यूनिट, दिस कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन और सिंगल कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दिस कंट्रोल यूनिट फेच इंस्ट्रक्शन, फेच सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम फ्रॉम द मैन मेमोरी। ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है वहां से मेन मेमोरी से उसको फेच करेगा। ठीक है, देन कंट्रोल यूनिट डिकोड द
meaning of the instruction and decode the instruction made available to the processor unit to execute the instruction. ठीक है, तो मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, डेटा इंस्ट्रक्शन को फैच किया, देन उसने क्या किया, कंट्रोल यूनिट ने उसको डिकोड किया, उसकी मीनिंग को डिकोड किया कि क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, डिकोड करने के बाद उसने क्या किया, उसको प्रोसेसिंग यूनिट के पास सेंड कर दिया। अब प्रोसेसिंग यूनिट के पास हमारा क्या अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम अवेलेबल है। अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगी, प्रोसेस करेगी एंड देन एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, so basically this control unit generate a appropriate control signal to direct single processing unit to operate on single data stream one ऑपरेशन एट अ टाइम। ठीक है, तो जो भी हमारी कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगी, जनरेट करती है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स को। कंट्रोल सिग्नल्स हमारे क्या पे होंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम, तो इनको जनरेट करेगी एंड डायरेक्टली क्या करेगी, जो भी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको सेंड करेगी ऑपरेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर सिंगल डेटा स्ट्रीम का हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारा उस डेटा पर जो भी डेटा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो एट अ टाइम हमारा वन ही होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ सिंगल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, सो टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन टू रिक्वेस्ट द डेटा which will be operating, so data will be coming from the memory module to processing unit। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए जो भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से उस डेटा को लेंगे, देन हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, देन जो भी रिजल्ट होगा उसे मेन मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। हम यहाँ पर बाई डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डेटा वहाँ डेटा को हम ट्रांसफर कर भी सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर हम जो भी डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट या मेन मेमोरी से सेंड भी कर सकते हैं, और मेन मेमोरी से प्रोसेसिंग यूनिट से फैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेन मेमोरी से डेटा को लेंगे एंड वहां से हम क्या करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे हम, जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर, एंड जो रिजल्ट है उसे हम मेन मेमोरी में क्या करेंगे, सेंड करेंगे, स्टोर कराएंगे। अब जो मेन मेमोरी में जो डेटा होगा या जो इंस्ट्रक्शंस है, हम अगेन क्या करेंगे, उसे कंट्रोल यूनिट के पास सेंड करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, देन हम वहां से ये प्रोसेस हमारी अगेन स्टार्ट होगी एंड प्रोसेस कंप्लीट होगी हमारी। तो ये सारी प्रोसेस सीक्वेंशियली हमारी चलते रहती है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियली कंप्यूटर और सीक्वेंशियल प्रोसेसर। ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, अगर आपको एग्जांपल बताना हो तो इसका एग्जांपल होगा IBM 701, IB1620, IBM PCs, जो भी IBM के PCs हैं, एंड जो भी हमारे ओल्डर PC कंप्यूटर्स थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। ठीक है, ओल्डर PC या हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ SISD, जहां पर हम सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा का यूज करके हम यहाँ पर जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन थे उनको हम एग्जीक्यूट कराते थे एंड स्टोर कराते मैन मेमोरी में। ओके, तो ये था आपका SISD। नाउ नेक्स्ट है आपका SIMD। SIMD, ठीक है, मीन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, this SIMD is also called vector or parallel processing, vector processing or parallel processing। ठीक है, so first of all it is a multi processor machine। ठीक है, अब हमारा ये यूनी प्रोसेसर नहीं रहा, अब हमारा ये क्या हो गया है, मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, मशीन। तो याद रखना SISD आपका क्या था, यूनी प्रोसेसर था, बट SIMD आपका क्या है, मल्टी प्रोसेसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इट एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट बट ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम। ठीक है, मींस यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन हमारी मल्टीपल कंट्रोल यूनिट पर पर ऑपरेट होगा, एंड वो कंट्रोल यूनिट जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, जनरेट करेंगी, जो भी डेटा स्ट्रीम है वो हमारे मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का पर ऑपरेट करेंगी। ठीक है, बट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा, सिंगल होगा, बट डेटा स्ट्रीम जो होंगे हमारे क्या होंगे, वो मल्टीपल होंगे, बट सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट पर वर्क करेगा। ओके, सो इट इज
well suited to scientific computer since they involve lots of vector and matrix operation. ठीक है, तो ये जो आपका SIMD है वो किसके लिए सुटेबल है? आपके साइंटिफिक कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम क्या इन्वॉल्व रहते हैं? हमारे वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स. ठीक है, जिन पे हम वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. आप जनरली देखेंगे जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी वो रिसर्च करते हैं, और अगर उन्हें कुछ स्टडी करके कुछ प्रूव करना रहता है, तो बेसिकली हम जैसे मैटलैब है, हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, मैट्रिक्स लेबोरेटरी का यूज करते हैं, तो उस पर हम मैट्रिक्स पर वर्क करके वो सारी चीजों को प्रूव करते हैं. सिमिलरली वेक्टर प्रोसेसिंग भी होती है. ठीक है, तो वेक्टर पर हम वर्क करते हैं. तो साइंटिफिक जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें हम वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो हैं हम उनमें यूज करते हैं, तो ये उनके लिए सुटेबल्स होते हैं. so that the information can be passed to a processing element, मीन्स जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है या प्रोसेसिंग एलिमेंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइज डेटा एलिमेंट ऑफ वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेट्स एंड ईच प्रोसेसिंग यूनिट कैन पास वन डेटा सेट. ठीक है, तो जब मैं डायग्राम बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि क्या होता है. जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम पास करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू. प्रोसेसिंग यूनिट को अब हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग एलिमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग अ मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट, लाइक प्रोसेसिंग यूनिट 1, प्रोसेसिंग यूनिट 2, प्रोसेसिंग यूनिट 3, तो हम उसे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट वेक्टर्स हम यूज करेंगे उनके लिए और उसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल सेट्स में. ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट 1, 2, 3 जैसे मैंने आपको बताया वन डेटा सेट के अंदर. ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा बाय डिफरेंट प्रोसेसर, दैट इज मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेम टाइप प्रोसेस ऑन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम. ठीक है, तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा डिफरेंट सेट ऑफ डेटा. ठीक है, जिसमें किसके थ्रू? डिफरेंट प्रोसेसर्स के थ्रू, मींस मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, बट सेम टाइप की जो प्रोसेस होगी वो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम पर हमारी परफॉर्म होगी. ठीक है, सो द ग्रुप इज डेडिकेटेड टू एरे प्रोसेसिंग मशीन. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरे प्रोसेसर. ठीक है, अभी हमने देखा था, हम इसे क्या बोले थे? वेक्टर और पैरेलल मशीन बोले थे. हमारा ये एरे प्रोसेसिंग में भी यूज होगा. ठीक है, नाउ समटाइम्स वेक्टर प्रोसेसर कैन आल्सो बी सीन एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, तो वेक्टर प्रोसेसर, पैरेलल मशीन, पैरेलल प्रोसेसर, वेक्टर प्रोसेसर और क्या? एरे प्रोसेसिंग मशीन. ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम मैं बनाऊं तो कैसा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? ये हमारा क्या है? कंट्रोल यूनिट. ठीक है, इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा हम उसको सेंड करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट में, बट वी आर यूजिंग अ डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट. ठीक है, जिसे हम बोल रहे थे. ठीक है, तो क्या होगा? PU1, PU2, PU3. ठीक है, अब ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हम प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू क्या करते हैं? डेटा स्ट्रीम को सेंड करते हैं. तो डेटा स्ट्रीम 1 यहाँ पर, डेटा स्ट्रीम 2 एंड यहाँ पर क्या होगा आपका? डेटा स्ट्रीम 3. ठीक है, दिस इज योर मेन मेमोरी. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा आपका? मेन मेमोरी 1, मेन मेमोरी 2, मेन मेमोरी 3 और अप टू n. ठीक है, सो ये आपका क्या होगा? मेन मेमोरी होगा. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको अगेन हम क्या करेंगे? कंट्रोल यूनिट में सेंड करेंगे. यहाँ पर क्या होगा आपका? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम. ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो था इनपुट. तो यहाँ पर देखिए, सिंगल कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शन वो मेन मेमोरी से फेच करेगा उसको कंट्रोल यूनिट पर वो अवेलेबल होगा. कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उस इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा प्रोसेसिंग यूनिट के पास. बट वी आर यूजिंग
SIMD, ठीक है, मीन सिंगल इंस्ट्रक्शन। ये आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का यूज करना है। तो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग यूनिट भी मल्टीपल यूज करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या किया, PU1 PU2 PU3 किया एंड उनसे हम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हमने यूज की। ठीक है, जिस प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा स्ट्रीम 1, इसके लिए डेटा स्ट्रीम 2, 3 के लिए डेटा स्ट्रीम 3 अप टू n हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल डेटा के लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा सो सेम प्रोसेस हमारी फॉलो होगी। क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मेन मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करेगा, देन उसको डिकोड करेगा, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा, देन उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट के पास सेंड कर देगा। ठीक है, तो अब प्रोसेसिंग यूनिट हमारी डिफरेंट है, तो ऑल द प्रोसेसर यूनिट्स गेट द सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन तीनों प्रोसेसिंग यूनिट के पास सेम इंस्ट्रक्शन जाएगा, दैट इज IIS। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग यूनिट 1 के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो, 2 के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो, 3 के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो, और n अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन ही तीनों के लिए सेम होगा। ठीक है, सो all the processor units get the same instruction stream as it is has been. ठीक है, so it will be operating and will the different data stream fetching the information from the memory module. ठीक है, तो अब देखिए ये सिंगल इंस्ट्रक्शन था, इसने क्या किया, इनको अवेलेबल करवाया इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग यूनिट को, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट को। अब हमारे पास क्या है, डेटा स्ट्रीम है। तो डेटा स्ट्रीम क्या करता है, फेच करता है इंफॉर्मेशन को कहाँ से, मेमोरी से, बिकॉज दिस डेटा स्ट्रीम इज वर्किंग एज अ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो मेन मेमोरी से डेटा को वो क्या करेगा, फेच करेगा। अब यहाँ पर दिस मेमोरी मॉड्यूल जो हमारा मेन मेमोरी है, दिस मेमोरी मॉड्यूल, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स आर, they are ranging from 1 to n and all the memory modules be under one frame known as shared memory. ठीक है, अब आप देखिए हम यहाँ पर जो हमारी मेमोरी यूज हो रही है वो भी डिफरेंट मेमोरी यूज हो रही है, मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेन मेमोरी। सो डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारी रेंज, हमारी 1 to n रेंज के अंदर है, एंड दिस मेमोरी मॉड्यूल्स इज वर्क इज अंडर इन द शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, शेयर्ड मेमोरी होगी, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट मेन मेमोरी मॉड्यूल्स होंगे। ओके, so from the shared memory data stream should be going and this data stream will be made available on the processing unit. ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा डेटा स्ट्रीम होगा मेन मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी की मेमोरी मॉड्यूल से वो फेच करेगा एंड प्रोसेसिंग यूनिट पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड अब प्रोसेसिंग यूनिट ने तो डिकोड कर, कंट्रोल यूनिट ने डिकोड करके सेंड किया था। अब प्रोसेसिंग यूनिट के पास जो इंस्ट्रक्शन है एंड जो डेटा है, अब प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, प्रोसेस करेगी एंड उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगी, डिकोड करेगी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है, सो बेसिकली एंड जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो कहाँ पर वापस से सेंड होगा, हमारा मेन मेमोरी के अंदर सेंड होगा एंड मेन मेमोरी शेयर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर होगा एंड वापस से उस इंस्ट्रक्शन को हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर सेंड करेंगे, कंट्रोल यूनिट के पास। तो सिमिलरली हमारे जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है वो इसी वे में हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस SIMD सिस्टम अलाउ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू मल्टीपल और सेवरल डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, so that's why this machine is also called vector machine or array processor. ठीक है, ये वर्किंग जिसे SIMD की होती है इसीलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं array processor और vector processor. ठीक है, because all the processing unit receives the same instruction and broadcasted from the control unit, but operated on different data sets from distinct data streams. ठीक है, and this shared memory contains a multiple memory modules. Okay, so ये clear है सभी को SIMD की वर्किंग कि कैसे वर्क करेगा ये। देन नेक्स्ट है आपका MIST। MIST
MIST, ठीक है, मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। जस्ट अपोजिट हो गया आपका कि आप वहां पर सिंगल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे थे, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का यूज कर रहे थे, बट हम यहाँ पे अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे बट सिंगल डेटा स्ट्रीम का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और सिंगल डेटा स्ट्रीम यूज करेंगे, तो डेटा स्ट्रीम हमारा किस चीज के बीच में होता है, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेन मेमोरी के बीच में होता है, ठीक है। तो मींस वहां पर हमारा एक सिंगल डेटा स्ट्रीम होगा, बट इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ पर होता है, कंट्रोल मैन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में आता है एंड कंट्रोल यूनिट से प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। तो वी हैव टू यूज डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल अंडर इन द शेयर्ड मेमोरी एंड वी हैव टू यूज डिफरेंट कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल यूनिट 1, कंट्रोल यूनिट 2 और अप टू कंट्रोल यूनिट n, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होता है, तो IS1, IS2, ISN। सो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होगा PU1, PU2 एंड PUN, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, एक शेयर्ड मेमोरी होगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, हमारी मैन मेमोरी होगी लाइक MM1, MM2 अप टू MMN। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, लाइक जो आपका MM1 है वो आपका किससे कनेक्ट होगा, कंट्रोल यूनिट 1 से। MM2 है वो किससे कनेक्ट होगा, आपका कंट्रोल यूनिट 2 से। MMN है वो किससे कनेक्ट होगा, आपका कंट्रोल यूनिट N से, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डेटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रोल यूनिट हम यूज करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट यूज करेंगे, बट जो डेटा होगा वो हमारा एक सिंगल होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन 1 जाएगा, इंस्ट्रक्शन 2 जाएगा एंड इंस्ट्रक्शन n जाएगा, ठीक है। सो दिस MIST इज बेसिकली अ मल्टी प्रोसेसर मशीन, ठीक है। each processor execute a different sequence of instruction, ठीक है। तो हर एक प्रोसेसर होगा जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब हमारे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। तो जो भी हमारा प्रोसेसर होगा वो क्या करेगा, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इट एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑन different instruction on different processing unit, ठीक है। अब हर एक इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी शेयर्ड मेमोरी से डेट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा वो कंट्रोल यूनिट पर अवेलेबल होगा, कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा एंड उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग यूनिट के पास सेंड करेगा। तो हर एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर क्या कर रही है, डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। देखिए जैसे हमने पहले देखा था कि सेम इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करा रही थी कि इंस्ट्रक्शन तो सिंगल था बट मल्टीपल कंट्रोल यूनिट पर वो अवेलेबल हो रहा था, जो अवेलेबल हो रहा था वो जो इंस्ट्रक्शन वो सभी के लिए सेम था। बट यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो हर एक प्रोसेसर के लिए डिफरेंट होगा, लाइक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सीक्वेंस 1 यूज करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सीक्वेंस 2 यूज करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट 3 के लिए इंस्ट्रक्शन 3 यूज करेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज एन अनकॉमन आर्किटेक्चर विच जनरली यूज फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। किसके लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली इसका फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है। सो ये अनकॉमन आर्किटेक्चर है हमारा, इसलिए हम इसे फॉल्ट टॉलरेंस में यूज करते हैं। इन केस ऑफ MIST कंप्यूटर्स मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेट ऑन सिंगल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, MIST में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो सिंगल डेटा स्ट्रीम पर वर्क करती हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये आपकी 3 प्रोसेसिंग यूनिट है बट सिंगल हमारे पास डेटा स्ट्रीम है,
तो अब हम डेटा स्ट्रीम को किससे कनेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट 1 से, प्रोसेसिंग यूनिट 2 से, प्रोसेसिंग यूनिट n से। हम किसी एक से ही कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास प्रोसेसर तो डिफरेंट है बट डेटा हमारे पास सिंगल है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज नेवर बीन यूज्ड इन अ प्रैक्टिकल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होंगे, अब अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो क्या होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेड अवेलेबल ऑन द कंट्रोल यूनिट। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हमारे आ गए 1 2 3 कंट्रोल यूनिट पर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, डिकोड कर रही है दोस इंस्ट्रक्शन एंड गिव दोस इंस्ट्रक्शन टू द और पास टू द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट विल हैव अ सिंगल डेटा स्ट्रीम, प्रोसेसिंग यूनिट के पास सिंगल डेटा स्ट्रीम है एंड आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड दिस data stream will be processed by this instruction 1, ठीक है। अब जैसे कोई सा हमने कंट्रोल यूनिट 1 से इंस्ट्रक्शन 1 पास किया, इंस्ट्रक्शन 1 हमारा प्रोसेसिंग यूनिट के पास गया, तो सिंगल डेटा है तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, इस डेटा स्ट्रीम को यूज करेगी, ठीक है। एंड derived partially or the original data will be made available to the PU2. It will again work with this particular instruction IS2 and derived or partial or copy of the original data will be made available to the next PU1, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल है वो तो हमारे पास सिंगल है, बट इसकी हम जो कॉपी है वो पार्शियली हम किसको अवेलेबल कराएंगे, जो डिफरेंट हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको हम अवेलेबल कर पाएंगे। बिकॉज अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा स्ट्रीम होती तो हम उसे सिंगल सिंगल डेटा स्ट्रीम अवेलेबल करा देते हैं एंड वो एग्जीक्यूट करते, बट हमारे पास सिंगल डेटा स्ट्रीम है। तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट 1 हम यूज कर रहे हैं तो हमारा डेटा स्ट्रीम ओरिजिनल यूज होगा और उसकी जो कॉपी होगी वो PU2 PU3 पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्किंग करेगा एंड एग्जीक्यूशंस को हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है उनको एग्जीक्यूट कराएगा। So in this way from the processing unit n, the result which has been produced will be made available on the shared memory. जो भी अब इंस्ट्रक्शन को हमारे एग्जीक्यूट होंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, हमारा शेयर्ड मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो basically this MISD is a computer in which several instruction manipulate the same data stream concurrently, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेवरल